Jai Hind children, welcome in your revision class. We are doing annual term revision, isn't it? And we have completed integer already. Now it's time for percentage. So let's start what we have to do in percentage. Percent means itself is means beta per 100. Out of 100, what is the value? Okay, so percent means per 100. Now if you have to do that, what do you mean by percent? So percentage means how many are out of 100, how that many 100. Now first one is the sequence which I am going to tell you is that first one is to convert a fraction into a percentage. What will be the procedure? How to convert a fraction into percentage. Then how to convert a percentage into fraction, this we will do. After that, percentage as ratio. Then if the ratio is given, how to convert it into percentage. See, then if it is in decimal, how to convert it into decimal, into percentage. Decimal दिया है तो कैसे उसको percentage में करेंगे. And if it is in percentage, how to convert into decimal. So vice versa, we will do all these things and then we will pick the questions. In this chapter, only first exercise will come. Only 10A. सिर्फ 10A तक आपको पढ़ना है, ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सीक्वेंस. सबसे पहले उठाएंगे टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज. टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन अगर हमको दिया गया है, टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज. To convert a fraction into percentage. कैसे करेंगे बेटा? How we will do? See, let's take one fraction. एक fraction लेते हैं. पहले हमने लिया 7/50. हमने लिया बेटा 7/50. 7/50 is how much percentage? कैसे पता करेंगे? ये आउट ऑफ 100 होता तो हम बोल देते कि ओके ये तो 7 है, आउट ऑफ 100 है तो 7 है, 7% हो गया. तो ये कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो कन्वर्ट एनी फ्रैक्शन इनटू अ परसेंटेज. व्हाट वी विल डू? वी विल मल्टीप्लाई इट विथ 100. हम सीधे उस फ्रैक्शन को क्या करेंगे? परसेंटेज को में लाने के लिए वी विल मल्टीप्लाई इट विथ 100. सो लेट्स मल्टीप्लाई. जैसे ही आप उसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से, सो दैट इज नॉट इक्वल ना. ये तो इसके इक्वल हुआ नहीं, इक्वल टू का साइन है यहाँ पे. तो 7/50 को आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. सो दैट्स व्हाई यू आर मल्टीप्लाइंग विद 100. सो नाउ यू विल पुट अ परसेंटेज साइन. ये हो गया परसेंटेज साइन. ये परसेंटेज साइन लग गया यहाँ पे, ठीक. परसेंटेज का मतलब ही होता है आउट ऑफ 100, तो वो 100 से 100 कैंसिल हो जाता है. सो नाउ जस्ट सॉल्व इट. 50 2s are 100. This is 14. So answer is 14%. Now you can write in this way. 7/50 is definitely equal to 14%. ये sure है, ये इसके बराबर ही है, ठीक है. 7/50 is equal to 14%. So if a number is given in fraction, we will multiply it with 100 and we will put the percentage sign so that we can convert that fraction into percentage. वो जो फ्रैक्शन हमको दिया गया है, we can convert it into a percentage. Okay. Now let's start with the reverse of it. How to convert a percentage into fraction? How to convert a percentage into fraction? अब वो कैसे करेंगे? अगर percentage दिया है तो उसको fraction में कैसे लाएंगे? So I'm taking this 14% itself. Let's take this 14%. Now परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना है, ठीक है. लेट्स टेक 14%. 14% दिया. कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन. टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन. 14% दिया है हमको. अब ये आपका फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे हम इसको? हाउ वी विल राइट इट इन फ्रैक्शन? तो परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100. सो व्हाट वी विल डू? 14 किसमें है? 14 है. परसेंट का मतलब इस परसेंटेज का साइन हटाइए बेटा एंड जस्ट राइट डाउन 100 हियर. नाउ दीज टू आर सेम. आप इसको ऐसे लिखो, चाहे आप इसको ऐसे लिखो, बोथ आर सेम. नाउ सॉल्व दिस. लास्ट पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे आप. सॉल्व दिस. So 2 7s are 14, 2 5s are 10 and 0.
So 14% is same as 7/50. अभी जस्ट सॉल्व किया था हमने कि 7/50 कितना परसेंट होता है, 14%. नाउ वाइस वर्सा वी हैव सॉल्व दैट 14% क्या होता है फ्रैक्शन में. तो 14% इज सेम एज 7/50. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, now children, the next part is how to convert a ratio or a percentage into ratio. Let's start with percentage हमें दिया है, and now how to convert it into ratio. So percentage into fraction we have done. percentage sign अगर है तो उसको यानी out of 100 हो गया and you can solve. Now अगर percentage है तो उसको ratio में कैसे करेंगे, how you will convert it into ratio. So let's take any other example. I am taking 200. Let's take 175% है, मान लीजिए 175% into ratio. बेटा रेशियो में लिखना है इस समय हमको. कैसे लिखना है? Now we have to write it in ratio. So 175%, just now you have learned that percentage means what? Out of 100. ये 175 है कितने में से? It is out of 100. So यानी ज्यादा हो गया है ना, वैल्यू इज मोर. कोई बात नहीं. Now just divide it, simplify it. So when you will simplify, this is 25 4 times is 100, 25 4s are 100, and 25 7 times is 175. 25 7s are 175. So this is 7/4, but it is in fractional form. Simplest है, लेकिन ये क्या है, fractional form में. You have to write it in ratio. So what we can write? We can write it in the ratio 7:4. Okay, 7:4. Same process is same, only you have to write it in ratio. परसेंटेज के साइन से आप चाहते गए और आपने पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया and then write it in ratio form. सेम प्रोसेस है. अगर रेशियो फॉर्म में दिया है तो पहले रेशियो को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे एंड देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज. ठीक है. सेम उठाइए, 7/4 को लेते हैं. नाउ हम रेशियो को परसेंटेज में करने जा रहे हैं. रेशियो, राइट डाउन रेशियो. हमें रेशियो दिया है एंड वी आर नाउ कन्वर्टिंग इनटू परसेंटेज. सो रेशियो है मेरा 7:4. तो 7:4 कैन बी रिटन एज 7/4. फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट किया 7/4 एंड देन हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू 7/4 है तो हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज. तो हम क्या करेंगे बेटा, वी विल मल्टीप्लाई इट विथ 100. हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी विल पुट अ परसेंटेज साइन. हम क्या करेंगे, वी विल पुट अ परसेंटेज साइन. ठीक. सॉल्व इट. सो इसको जब सॉल्व करोगे आप तो सॉल्व जब करेंगे तो 7/4 है. नाउ 100 से 100 है तो ये सॉल्व होके ये हो जाएगा 25. ठीक है. 4 2 जाए 2 बचा और फिर 4 5 जा 20. ये हो गया. नाउ 25 7 टाइम्स इज 175. 175 क्या, परसेंटेज. सो 7:4 7:4 or 7/4 can be written as 175%. 175%. इसका मतलब ये हो गया कि 175/100 जो हमने बिगनिंग में लिया था, है ना. सो 7 रेशियो से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से कन्वर्ट कीजिए इन परसेंटेज. व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग इट विथ 100 सो दैट यू कैन कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज. पुट परसेंटेज साइन. परसेंटेज साइन लगाना ही होगा बेटा, क्योंकि 7/4 इज नॉट इक्वल टू 7/4 इंटू 100. तब आप इक्वल टू का साइन नहीं लगा सकते. 7/4 इज इक्वल टू 7/4 ओनली. इट इज नॉट एडिशन विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 100. नो, आप उससे मल्टीप्लाई विथ 100 इक्वल टू नहीं लिख सकते. तो फॉर बैलेंसिंग दिस यू हैव टू पुट द परसेंटेज साइन. नेक्स्ट इज रेशियो. अब रेशियो नहीं, नॉट रेशियो. अब नेक्स्ट इज डेसिमल. If decimal number is given, how to convert it into percentage. अगर हमको डेसिमल दिया गया है तो उसको कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे. So let's take any decimal value. Let's take to convert a given decimal. Okay. So हमने ले लिया मान लीजिए 0.36 डेसिमल. हमने ले लिया 0.36. This is our decimal.
This is a decimal number. Yes, it is a decimal number. And we have to write it in percentage. इसको percentage में कैसे लिखा जा सकता है? Same value होनी चाहिए. 0.036 is written in percentage. How it is possible? How we can write? So what we will do, first convert it into fraction. पहले तो इसको fraction में convert कीजिए. So 0.36 0.36 can be written as 36 by कितना decimal place है बेटा? 2 decimal place. So it can be written as 36 by 100. 36 by 100. Now simplify it. अब इसको हम simplify करेंगे. या तो आप HCF से simplify कीजिए लेकर के, या फिर इसको करते रहिए जब तक ये simplify ना हो. जैसे कि 2 1s are 2 बचेगा, तो 2 8 जा 16, ये 2 5 जा 10 हो गया, फिर ये 2 9 जा 18 और ये 25 हो गया. तो 9 by 25 ये तो आया फ्रैक्शन में. 0.36 can be written as 9 by 25 in fraction. ये 9 by 25 as fraction में कर सकते हैं. ठीक है? Wait. Now what we have to do? We have to convert this fraction into percentage. So same process. Not percentage. Fraction into percentage. So fraction को percentage में लिखने के लिए 9 by 25 into 100 आप लगाते हैं. You will multiply it with 100. Now you will put a percentage sign. अब ये हो गया 25 4 times, so 9 4 जा 36. ये हो गया. This is the answer. ठीक है? 36%. Clear? Now let's remove this. Meanwhile, you see the syllabus. This is the syllabus, children. Now, children, let's solve some more questions on percentage. Like the very first question is find 10% of 125 rupees. Find 10% of 125 rupees. So question is find 10% of 125 rupees. Now it can be in rupees, it can be in any value, in like in meter or in centimeter or in kilogram. It can be anyone. We will write the answer. We will take the values, we will write the answer, the unit at the last. Now 10% children, 10% means out of 100. Out of 100, 10 is there. Of means multiply, and whose? 125. So it is 25 4 times is 100 and 25 5 times is 125. Again 5 2s are 10 and 2 2s are 2 5s are 10. 2 5s are 10 and 2 2s are 4. So this is 5 into 5, which is left in numerator, divide by 2. Or it can be write as 25 by 2, or simply it can be write as 12.5. Now 12.5 will be in rupees. 12.5 will be in rupees. So in this way you can find the 10% of 125 rupees. Clear? Some more questions. Let's do some more questions, children. So like 7.5% of 80 kg. 7.5% of, let's take 40 kg. Let's take 40 kg. 7.5% of 40 kg. Okay. So what we will do? First we will convert the 7.5%. So 7.5% can be written as 7.5, and for percentage it is 100 out of 100. Instead of this percentage sign, I am writing in this way. Now here it is in decimal, so we can change it in fraction, isn't it? 7.5 can be written as 75 by 10. So 75 will be in numerator, and it's one place, that is 10. This decimal will be omitted, and this 10 will come here. Of means multiply, and this is 40 kg. How it has done, children? Let's see. 7.5 out of 100 can be written as 75 by 10 upon 100. This can be written as this. This can be written as this. 7.5 can be written as 75 by 10 in fraction. This 10 will come down and multiply with denominator. In numerator, if you will get any denominator, just
मल्टीप्लाइड विथ डिनोमिनेटर, उसको आप नीचे लेके आइए, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराइए। ये प्रोसेस है, द थिंग विच आई हैव डन हियर, द प्रोसेस इज दिस। ओके, 7.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 75 by 10, दिस 10 विल कम डाउन हियर एंड देन इट विल मल्टीप्लाई विथ 100, सो ये हो जाएगा 1000। क्लियर? सो नाउ next solve this, 0 0, 2 2s are 4, 2 5s are 10 and this is 50. So again it can be divided, or you can divide it in different way also, like 50 है ना, तो 25 2s are 50, 25 3s are 75, फिर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, so this is only 3 क्या बेटा, 3 kg। 7.5% ऑफ 40 kg इज ओनली 3 kg। अगर कोई क्वेश्चन आता है उसमें कहा जाता है कि इन अ 40 kg ऑफ बैग 7.5% इज, इट्स नॉट गुड, 7.5% ऑफ दैट wheat is not good in a 40 kg of wheat bag, 7.5% of wheat is not good, it's we have to remove it from the whole quantity. So how much you are removing, कितना आप उसमें से निकाल रहे हैं, आप परसेंटेज में थोड़ी ना निकालते हैं, you actually take it out in the quantity, ये तो quantity है kg में, तो you are taking out 3 kg, almost 3 kg आपका खराब हो गया 40 kg में से, so left over is 37 kg only and that will be the that you will use. सो क्वेश्चन में किसी भी तरह से मैनिपुलेट करके आता है बेटा, तो यू हैव टू थिंक ऑन दैट बेसिस कि 7.5% 40 kg का कितना होगा, सो हाउ यू विल सॉल्व, यू विल सॉल्व इन दिस वे। 7.5% को पहले हमने फ्रैक्शन में चेंज किया, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, 40 kg का 40 लिख किया यहाँ पे एंड देन सॉल्व इट, यू विल गेट 3 kg। ओके, इन द सेम वे लेट्स डू सम मोर क्वेश्चन। Let's do some more question, like what percent of 1 kg is 25 gram? Question लिखते हैं बेटा, what percent of 1 kg is 25 gram? ये जो 25 ग्राम है, दिस इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ 1 kg, है ना, व्हाट परसेंट ऑफ 1 kg, 1 kg का 1 kg इज 25 ग्राम, कितना है बेटा 25 ग्राम 1 kg का कितना परसेंट है। सो लेट द परसेंट बी एक्स, लेट द परसेंट बी एक्स, मान लो वो x है, सो हमें क्या निकालना है, x परसेंट ऑफ 1 kg इज, x परसेंट ऑफ 1 kg इज 25 ग्राम। इट इज इन ग्राम, इट इज इन kg, इट इज मिसमैचिंग, है ना, सो यू हैव टू मेक इट इक्वल, यूनिट को इक्वल बनाना पड़ेगा। x परसेंट ऑफ 1 kg इज 25 ग्राम, तो यही हमें निकालना है, कितना परसेंट है 1 kg का, कितना परसेंट है 25 ग्राम। So kg will be divided, kg will be converted into gram. So next में लिखेंगे x परसेंट, x परसेंट मतलब x upon 100, ऑफ means multiply, 1 kg का मतलब हो गया 1000 ग्राम, 1 kg means 1000 ग्राम, that is equal to 25 ग्राम, ऐसे। So ये आप सॉल्व कीजिए, 0 से 0 कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, वो अलग चीज है। Now x is into 10 is equal to 25, so x is equal to 25 by 10, x को निकालना है ना, तो keep x on one side and transpose the numbers on other side, 10 को उधर ट्रांसपोज करेंगे, it is in multiplication so it will go for division, so it is 2.5, it is how much 2.5, एक्चुअली में यहाँ पे ग्राम था और ये ग्राम भी नीचे जाएगा, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, only 2.5 will be left, so x is how much 2.5, x is how much 2.5, और वही हमने पूछा है, वही हमसे पूछा गया कि what percent, let the percent be x, so 2.5% हमारा है कितना 25 ग्राम, 1 kg का 2.5% है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट इज अनदर क्वेश्चन, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। सो इट कैन बी in gram, in kilometer, in
rupees, in any value, in any unit, the question may be given to us, and then we have to solve, we have to think according to that. Find 3 1/3% of 90 किलोमीटर. क्वेश्चन है हमारे पास, find 3 1/3%, find 3 1/3% of 9 किलोमीटर. Find 3 1/3% of 90 किलोमीटर, नॉट 9 किलोमीटर. 9 किलोमीटर का भी निकाल सकते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं. 90 किलोमीटर 3 1/3% है, ये तो अब मिक्स्ड में हो गया. सो फर्स्ट यू विल कन्वर्ट दिस मिक्स्ड इनटू improper. First you will convert it into improper only. So 3 3s are 9 plus 1, 10/3%, ठीक है, of 90 किलोमीटर. 90 किलोमीटर का कितना, 10/3% कितना है, हाउ मच? Oh, it is in kg. No, it is in kilometer. So ये अब परसेंटेज का मतलब आपको पता ही है, you know that percentage is what? 10/3 divided by 100. ये हो गया. This 3 will come down. ये 3 आपका नीचे आ जाएगा. Of means multiply, and this is 90 किलोमीटर. So it is 10/3 into 100 into 90. So 0 से 0 कैंसिल हो गया, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, इस 3 से 3 टाइम्स आएगा. तो दिस इज हाउ मच? दिस इज 3 बेटा, ओनली 3 क्या? 3 किलोमीटर. दिस इज 3 किलोमीटर. 10/3% 90 किलोमीटर का है, सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर. 3 whole 1/3% 90 किलोमीटर का 3 whole 1/3% इज हाउ मच? इट इज 3 किलोमीटर. ठीक है, वही आएगा ही 3%. अगर आप सिर्फ 3% देखो तो ये नियर अबाउट 90, नियर अबाउट 100 के आसपास है ना, तो 100 का 3% कितना होता है? 3 होता है. ठीक है, लेकिन ये 90 का है, ये 3 whole 1/3 है, इट्स नॉट एग्जैक्ट 3. सो इसीलिए ये 3 आया है, नहीं तो एग्जैक्ट 3 होता ना तो फिर ये और नीचे आता बेटा, क्योंकि 90 है, 100 है नहीं वहाँ पे. So in this way you can solve such questions. Let's take some more percentage we are doing. If you have to do the congruence chapter also, children, if you have to do congruence chapter, let me write down congruence chapter. Okay, because time is there, so I want that you can revise congruence chapter also. These all are, whatever I am doing, these all are what? These all are your half yearly chapters, isn't it? Congruence chapter. Let's take congruence chapter. Percentage, all the things, I hope all the things I have completed. Congruence में triangle congruence. Okay, it is triangle congruence. So how you can find? See, if two lines are of same length, one is 5 centimeter and this one is also 5 centimeter. It is AB point and it is CD. Okay, line segment AB and line segment CD. Both were having 5 centimeter in length. So both will be congruent. दोनों क्या होंगे? Congruent होंगे. If an angle AOB, if it is 45 degree and any other angle is also there, PQR, angle O is 45 degree and angle Q is also 45 degree. So both will be congruent. Both will be congruent. Okay. So basically what we have to see for length, we have to see the measurement, what is its measure. So if two figures, if they will exactly overlap on each other, if they are same, then they are called as congruent. They are called as congruent if they are of same shape and size. In your class, in class 7th, triangle congruency is there. Like two triangles can be said to be congruent if we are having a triangle ABC and if we are having a triangle PQR. How can we call them as congruent? वो congruent है, कैसे कह सकते हैं हम? When either their all sides are equal to each other,
जैसे कि अगर आपका एक साइड है 5 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर एंड दिस इज 4.5 सेंटीमीटर मे बी। इन दिस केस वन साइड इज 4.5 सेंटीमीटर, एक साइड मैच हो गई बेटा, ठीक। अनदर साइड इज 6 सेंटीमीटर, ये भी मैच हो गई, एंड द थर्ड साइड इज 5 सेंटीमीटर, ये भी मैच हो गई। सो रिस्पेक्टिव साइड इज मैचिंग, देन यू कैन कॉल इट इन कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कहेंगे हम इसको? नाउ वी विल राइट AB। AB किसके बराबर है? देखो AB 5 सेंटीमीटर, AB किसके बराबर है? QR। नेक्स्ट BC, BC किसके बराबर है? PR के बराबर, BC इज इक्वल टू PR। एंड द थर्ड साइड AC, AC 6 सेंटीमीटर है ना, AC इज 6 सेंटीमीटर, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू PQ। ये किसके कॉन्ग्रुएंट है? PQ के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये 5 है, क्योंकि ये 4.5 है, क्योंकि ये 6 सेंटीमीटर है। सो इन दिस वे यू कैन राइट। नाउ आफ्टर प्रूविंग दिस by using SSS, by using कौन सा क्राइटेरिया लगेगा इसमें? SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। ट्राइंगल ABC, पहले तो आप एक ट्राइंगल का नाम अपने आप लिख लीजिए। नाउ इट इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये साइन होता है कॉन्ग्रुएंट का, कॉन्ग्रुएंट टू। अब हम मैच करेंगे बेटा, हाउ वी विल मैच? AB यानी फर्स्ट टू प्लेस का जो आपका वर्टेक्स है AB किसके बराबर है? QR। सो राइट डाउन QR, ट्राइंगल QR, B और आएगा। फिर नेक्स्ट इज BC मतलब फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वर्टेक्स जो है BC, जो लाइन सेगमेंट BC है वो किसके बराबर है? PR के बराबर। तो PR है तो R तो हमें मिल ही गया, हम P लिख सकते हैं। यस, वी कैन राइट P। एंड द थर्ड वन इज AC मीन्स फर्स्ट एंड लास्ट वर्टेक्स। अब पहला और आखिरी देखिए, लास्ट, फर्स्ट और लास्ट, ये मैच करना चाहिए। तो फर्स्ट और लास्ट AC है, दैट इज इक्वल टू PQ। यहाँ पे मैच कीजिए बेटा, इज इट PQ फर्स्ट एंड लास्ट? PQ, yes, it is QP बोलो चाहे PQ बोलो, yes, it is matching. So triangle ABC is congruent to triangle QRP के ही बराबर होगा, ये PQR के बराबर नहीं होगा कि हमने PQR लिखा तो हम PQR लिखेंगे। No, it will be written in such a way that exactly the sides, or if it is angle अगर वो भी given है तो it will be match according to that, ठीक है। सो ये सब हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग साइड से मैच करना चाहिए। नेक्स्ट इज सेकेंड वन इज, फर्स्ट क्राइटेरिया तो हमने पढ़ लिया SSS। सेकेंड क्राइटेरिया इज इफ टू साइड्स, मान लो हमारे पास ये 5 सेंटीमीटर यहाँ पे है, नहीं चलिए वही लेते हैं। इफ वन साइड इज 5 सेंटीमीटर, यस, वन साइड इज 6 सेंटीमीटर, यस, मैचिंग है, लेकिन थर्ड साइड नहीं दी है, थर्ड साइड इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, सो वी कांट अप्लाई SSS। For SSS congruence criteria, we need all three sides of both the triangle and they should be matching correspondingly. लेकिन इसमें तो तीसरी साइड दी ही नहीं है, so we can't use SSS, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? Now we will search for the angle। कोई एंगल दिया है क्या? एक एंगल ये दिया है 60 डिग्री और एक एंगल यहाँ पे दिया है 60 डिग्री, मान लो दे आर मैचिंग, बट दे आर नॉट द इंक्लूडेड एंगल, तो हम इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं लगा सकते। वी नीड एन एंगल, इंक्लूडेड एंगल whose two sides are given to us। जो दो साइड्स हमें दी गई हैं उसके इंक्लूडेड एंगल का ही वैल्यू हमारा मैचिंग करना चाहिए। अगर ये हमारा 50 डिग्री है और दिस वन इज ऑल्सो 50 डिग्री, ठीक है, both the angles are equal, ये भी 50 डिग्री है, ये भी, then only we can match it exactly by using SAS। दो साइड्स के बीच का एंगल बेटा, इंक्लूडेड एंगल चाहिए हमें ऑलवेज। सो फॉर दैट व्हाट वी विल राइट व्हाट इज गिवन टू अस। हमारा साइड AB 5 सेंटीमीटर QR के बराबर है, लिख दिया बेटा, QR के बराबर है, Q बराबर है, गिवन है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। देन AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर ये है, सो इट इज इक्वल टू PQ, ये भी हमारा गिवन है। एंड देन एंगल हमारा BAC, एंगल BAC मतलब एंगल A की बात हो रही है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल PQR, यानी एंगल Q की बात हो रही है।
क्यों है, it is also given. So what we will do, we will write triangle ABC is congruent to triangle. अब हम रुक जाएंगे, ABC किसके बराबर है, तो अब हम रुक जाएंगे AB फर्स्ट टू, ठीक है, AB फर्स्ट टू वर्टेक्स है, ये AB साइड जो लाइन सेगमेंट है, जो साइड है AB, वो किसके बराबर है, QR, तो लिख दिया QR, ठीक है, चलेगा. AC मीन्स फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, AC इज इक्वल टू PQ, तो फर्स्ट एंड लास्ट PQ होना चाहिए, तो Q तो ऑलरेडी है यहाँ पे, वी विल राइट P हियर, हो गया. एंड द थर्ड वन इज एंगल. एंगल देखिए कौन सा एंगल है, एंगल A. एंगल A किसके बराबर है, एंगल Q के बराबर है. सो एंगल A पहला एंगल इज इक्वल टू एंगल Q, फर्स्ट प्लेस एंगल A एंगल Q. यस, इट इज मैचिंग, it is correctly written. So triangle ABC is congruent to triangle QRP by which congruence criteria? By SAS congruence criteria. कौन से क्राइटेरिया पे होगा ये, SAS congruence criteria. Clear? ये हम करेंगे. Now next one is children ASA. ASA में क्या होगा बेटा, इफ टू एंगल्स आर गिवन एंड वन साइड इज गिवन टू अस. दो साइड भी नहीं दी, अब तीन साइड तो दी ही नहीं थी उन्होंने. नाउ टू साइड्स आर आल्सो नॉट गिवन, ओनली वन साइड इज गिवन, ओनली वन साइड इज गिवन. नाउ हाउ वी कैन राइट, तो अगर एक साइड दिया है तो वी विल चेक दैट, वी विल सी दैट वेदर द corresponding angles were given to us or not and it is matching with the another triangle or not. तो अगर ये मान लीजिए 70 डिग्री है और यहाँ पर भी ये 70 डिग्री है, ठीक, तो इनके दोनों एंगल के बीच का साइड 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी दोनों एंगल के बीच का साइड 5 सेंटीमीटर है. साइड इज मैचिंग, इंक्लूडेड साइड, दोनों एंगल के इंक्लूडेड साइड, बीच का साइड मैचिंग है. एंगल A 50 डिग्री, एंगल B 70 डिग्री और उनके बीच में 5 सेंटीमीटर. एंगल Q 50 डिग्री, देखो 50 डिग्री सही है. एंगल R 70 डिग्री, यस इट इज ऑल्सो मैचिंग, और उनके बीच का एंगल क्या है 5, तो यस इट इज मैचिंग. सो वी विल यूज टू एंगल्स एंड वन साइड, ASA. कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए बेटा आपको ये यहाँ ऐसे दे देंगे. अब आप सोचते रह जाएंगे कि मैम ने तो कहा था कि इंक्लूडेड एंगल्स के बीच का साइड गिवन होना चाहिए, तो यहाँ तो इंक्लूडेड एंगल ये है, मतलब दो गिवन एंगल्स ये हैं और उनके बीच का साइड तो दिया ही नहीं है, हम फाइंड भी नहीं कर सकते, ऐसा निकालेंगे. तो अब क्या करें, तो आप सब कुछ मैच हो रहा है, 5 सेंटीमीटर, यहाँ 70 है, ये 50 है तो एक 50 मैच हो गया, 5 है तो एक 5 मैच हो गया. अब ये वाला नहीं दिया तो कैसे करेंगे, नो you apply the angle sum property. क्या अप्लाई करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी. इससे एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहेगा कि 60 प्लस 50 प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री, सबका सम 180 होना चाहिए. तो 60 प्लस 50 कितना होता है, 60 प्लस 50 इज 110, सब्ट्रैक्ट कीजिए तो थर्ड एंगल आपका कितना आएगा, 70 डिग्री. नाउ इट इज मैचिंग एंड इट इज इक्वल ऑल्सो, निकालने के बाद इक्वल भी हो रहा है. सो कौन कौन सा एंगल इक्वल हो रहा है, देखिए बेटा, साइड AB इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू QR, एंगल A इज इक्वल टू एंगल Q, ठीक है, और एंगल B, ये एंगल B किसके बराबर है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल R. यहाँ पे सब लिख दीजिए, गिवन है, ये सब हमको गिवन है, और ये वाला हमने फाइंड किया है, फाइंड बाय यूजिंग एंगल R. एंगल B इज इक्वल टू एंगल R, एंगल R तो नहीं दिया गया था ना, ये गिवन नहीं था, तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि फाइंड बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी. सो बाय यूजिंग ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा जाएगा. ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल. अब हम वेट करेंगे, अब हम मैच करेंगे. तो AB साइड दी है क्या, यस, AB साइड इज QR, लिख दीजिए QR. देन BC साइड इज गिवन, नो साइड इज गिवन, और कोई साइड नहीं दी गई है. तो अब हम एंगल मैच करेंगे. एंगल A इज इक्वल टू एंगल Q, देखिए एंगल A पहला प्लेस पर है, यस, एंगल Q भी पहला प्लेस पे, यस इट इज मैचिंग. देन कभी कभी मैच नहीं करेगा तो यू हैव टू रीअरेंज दिस. देन एंगल B इज इक्वल टू एंगल R, एंगल B सेकेंड प्लेस पर है, एंगल R भी सेकेंड प्लेस पे, यस इट इज ऑल्सो मैचिंग. तो डेफिनेटली 3 पॉइंट्स तो क्लियर हो गए. सो डेफिनेटली द थर्ड पॉइंट विल बी QR है, तो नेक्स्ट क्या होगा, P हो जाएगा, QRP. सो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QRP.
ये है बेटा करेक्ट प्रोसीजर, एंड इन दिस वे ओनली यू हैव टू रिमेंबर फॉर योर फ्यूचर क्लास ऑल्सो. लास्ट वन इज RHS. अब ये RHS क्या है? व्हाट इज RHS? सो इन दिस वी नीड अ राइट एंगल ट्रायंगल, दैट्स व्हाई आई एम इरेजिंग द ऑल द वर्क. सी वी नीड अ राइट एंगल ट्रायंगल. हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल है चाहिए. अगर ये है ABC राइट एंगल एट B, है ना, और एक और ट्रायंगल है जो हमारा राइट एंगल है, राइट एंगल एट P, PQR. सो इफ सम बहुत ज्यादा बड़ा हो गया बेटा. ओके वेट, लेट मी रिड्यूस इट. ये हो गया, ठीक है. नाउ if the right angle triangles are given to us, then also we can use the congruence criteria by using RHS. In that we need a right angle triangle. सबसे पहले तो हमें एक right angle चाहिए. Yes it is. We need the hypotenuse. अगर hypotenuse भी match करता है, okay, that is also we need. And the third one is that any one of the legs should be equal to another leg. इसका एक leg, इसमें दो leg होते हैं ना, perpendicular और base. इसका कोई भी एक लेग आइदर परपेंडिकुलर और बेस शुड बी मैचिंग विथ वन ऑफ द लेग. ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? बाय यूजिंग RHS वी कैन प्रूव दैट, वी कैन शो दैट दीज टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, दे विल मैच इट एग्जैक्टली. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे ले लिया 8 सेंटीमीटर और ये भी कितना है बेटा? 8 सेंटीमीटर. इफ इट इज 5 सेंटीमीटर and it is also 5. अब मैंने देखो इधर ले लिया, another leg I have used. I have used one here and now I have used here. Okay, so now what you will do? You will use these things which is given to us. जैसे कि पहले तो angle B is equal to angle P पूरा लिखना होता है. ABC I am using in short way. QPR, तो एंगल P किसके बराबर है? एंगल B के Q में बराबर गिवन है 90 डिग्री है. ठीक है, एंड AB, साइड AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर किसके बराबर है बेटा? PR के. तो 5 सेंटीमीटर है PR के बराबर. और थर्ड साइड है AC इज इक्वल टू विच? AC इज इक्वल टू QR. नाउ वी विल शो विच ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट. सो ट्राइंगल ABC, ये तो आपने फर्स्ट ट्राइंगल अपने आप लिख दिया. नाउ द सेकेंड ट्राइंगल वी विल मैच ना. सो AB किसके बराबर है? PR. सो वी विल राइट ट्राइंगल PR. अब वेट करते हैं. थर्ड AC दिया है, नेक्स्ट AC. सो साइड AC शुड बी मैच विथ QR. AC किससे मैच होना चाहिए? QR से. तो यहाँ तो P है, या तो Q आता है या R आता है, यहाँ तो P है, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे. PR कैन बी रिटन एज RP. PR कैन बी रिटन एज RP. वो दोनों साइड सेम है, चाहे आप PR लिखो चाहे आप RP लिखो, बोथ आर सेम. सो आई एम रिप्लेसिंग विथ RP. PR को मैंने RP कर दिया. देखो AB इज इक्वल टू RP और PR. AB इज इक्वल टू RP और PR. पहला इफेक्टेड नहीं हुआ है. देन AC साइड, फर्स्ट और लास्ट वर्टेक्स. AC साइड किसके बराबर है? QR. तो QR है तो RQ भी लिख सकते हैं. R ऑलरेडी यहाँ पर है तो इसको नहीं हटाएंगे बेटा. R यहाँ है तो Q यहाँ पे लिख देंगे. QR और RP बोथ आर करेक्ट. और तीसरा एक एंगल दिया है बेटा, एंगल इज B. एंगल B मिडिल में है. वो एंगल किसके बराबर है? एंगल P के. एंगल P इज ऑल्सो इन मिडिल. यस इट इज करेक्ट. तो हमारा ABC जो ट्राइंगल है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू RPQ. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि AB किसके इक्वल होगा? RP के. श्योर. देखिए AB 5 सेंटीमीटर और RP देखिए RP भी 5 सेंटीमीटर. श्योर हो गया. नेक्स्ट है BC के बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन BC किसके बराबर होगा? PQ के बराबर होगा. PQ के. ये BC किसके बराबर होगा? इस साइड के PQ के. तभी ना कॉन्ग्रुएंट होगा, लेकिन दिया नहीं है, कोई बात नहीं. और जो थर्ड AC साइड है, फर्स्ट एंड लास्ट वर्टेक्स. AC साइड, AC फर्स्ट एंड लास्ट. AC किसके बराबर होगा? RQ के. तो AC 8 सेंटीमीटर, RQ 8 सेंटीमीटर. यस, परफेक्टली मैचिंग. एक तो ये हो गया. और अब एंगल्स पे आ जाइए. एंगल A शुड बी मैचिंग विथ एंगल R.
श्योर होगा जब आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया. अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल ए शुड बी इक्वल टू एंगल आर. इन आर केस ओनली एंगल बी इज गिवन, दैट इज इन द सेकंड प्लेस. सो सेकंड प्लेस का जो एंगल है इसमें वो उसके मैच होना चाहिए. तो एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल पी के. एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल पी के. क्लियर? सो इन दिस वे वी कैन शो दैट दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू अनदर ट्रायंगल. और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो लास्ट वर्टेक्स एंगल सी ये किसके बराबर होगा? एंगल क्यू के बराबर होगा ही होगा बेटा. ठीक है, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है. कभी कभी रिवर्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो बताओ कॉन्ग्रुएंट साइड्स कौन सी हैं, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स कौन से हैं. तो एंगल्स अगर आप देखोगे तो एंगल ए एंगल आर के बराबर, एंगल बी एंगल पी के बराबर, एंगल सी एंगल क्यू के बराबर. इन दिस वे यू विल से. ओके, सो आई हैव कवर्ड all the 3 beginning chapters, half yearly chapters, children. After this you have to do practice. See my videos which is already posted in your school app. Each and every chapter, sit back at your home and plan it accordingly. Do the revision of these 3 chapters as well as the annual chapters, all annual chapters. Total annual syllabus is posted. Okay, so all the best for your exam, children. Do revision well, very well revision, and then you will definitely score full marks. Till then, children, take care of yourself.